ایک وہ وقت تھا جب دبئی کے رولر نے ایمریٹس کو اسٹیبلش کرتے وقت پی آئی اے کی ہیلپ لی تھی۔ اب پی آئی اے پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے بھیک مانگنے پہ مجبور ہے۔ اس کی اتنی اہمیت تھی کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی محمد علی جناح نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یو ایس اے کی فرسٹ لیڈی نے کیپٹن کو گلے لگا کر ایسا کیا کہا کہ اس کے بعد پی آئی اے کی ترقی کو 4 چاند لگ گئے اور اس کی سکسیس بے قابو ہو گئی۔ دنیا کی دوسری ایئر لائن پی آئی اے سے اتنی امپریس تھی کہ وہ اپنی کرو کی ٹریننگ کے لیے انہیں پاکستان کے ٹریننگ سینٹر بھیجتے تھے۔ سچ پوچھا جائے تو پی آئی اے کی اتنی زیادہ اچیومنٹ ہے کہ انہیں انگلیوں پہ گننا مشکل ہے۔ اس کے باوجود ایسا کیا ہوا کہ پی آئی اے ہر وقت اور ہر منٹ لوس پہ لوس کرتی رہی، یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس کو خریدنے کے لیے صرف اور صرف 3.5 کروڑ کی قیمت لگائی گئی ہے۔ یہ اماؤنٹ ایمریٹس صرف 2 دن میں کماتی ہے۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن اس طرح فیل ہو گئی؟ زین ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی شروعات برٹش انڈیا کے دور سے ہوئی تھی، جب پاکستان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ 26 اکتوبر 1946 میں محمد علی جناح نے کچھ بزنس مین کے ساتھ مل کر ایک اورینٹ ایئر ویز رجسٹر کروائی تھی۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی ایئر لائن تھی جس کے مالک مسلمان تھے۔ پارٹیشن کے وقت اورینٹ ایئر ویز کو پاکستان ٹرانسفر کر دیا گیا۔ 1955 میں ایئر لائن کو نیشنل کیریئر کے طور پر اسے پی آئی اے کا نام دیا گیا۔ پہلے سال میں ہی پی آئی اے انٹرنیشنل سروس کا آغاز کر دیا تھا، جس میں کراچی سے شکاگو، روم سے لے کر لنڈن تک کی فلائٹ جانے لگی۔ یہ ایشیا کی سپر جیٹ ایئر کرافٹ استعمال کرنے والی ایشیا کی دوسری بڑی ایئر لائن بن گئی تھی۔ نہ صرف اتنا بھی بلکہ پی آئی اے نان کمیونیکیٹ ایئر لائن ہونے کے باوجود چائنا تک فلائی کرنے والی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ جنگوں اور ملک کے اکنامیکل مسائل کے باوجود بھی ایئر لائن ترقی کرتی گئی۔ پی آئی اے اب انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ ساتھ ورلڈ وائڈ نیٹ ورک بھی بن گئی تھی۔ یہ ہر 6 منٹ بعد پی آئی اے کے ایک فلائٹ کسی بھی ملک سے لینڈ یا ٹیک آف کرتے ہوتی تھی۔ صحیح فیصلے اور بہترین قیادت کی وجہ سے پی آئی اے پاکستان کی حکومت کو پروفٹ دینے والی ایک مشین کے طور پر کام کرنے لگ گئی۔ کچھ ہی عرصے میں پی آئی اے ایک بہترین ایئر لائن کے نام سے پہچانی جانے لگی، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پی آئی اے کے نام کو 4 چاند لگا دیے۔ 1962 میں یو ایس اے کی فرسٹ لیڈی جیکلین کینیڈی نے پاکستان وزٹ کیا۔ انہوں نے واپسی کے سفر کے لیے پی آئی اے کو چنا۔ جب فلائٹ لنڈن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ لینڈ کی تو فرسٹ لیڈی نے پی آئی اے کے کیپٹن کو گلے لگا کر اور ان لفظوں کو سب کے سامنے کہا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ فرسٹ لیڈی جیکلین کینیڈی کے ان لفظوں نے نہ صرف پی آئی اے کو بلکہ پاکستان کو بھی دنیا کے سامنے سرخرو کر دیا تھا۔ اس کے بعد بہت سی نامور شخصیت نے پاکستان کی طرف رخ کیا۔ سعودی کنگ 1996 میں اور 1967 میں ایران کے کنگ محمد رضا پہلوانی نے اپنی بیوی کے ساتھ وزٹ کیا۔ دن بہ دن پاکستان کی ایئر لائن سروس عروج پہ پہنچتی رہی، حتیٰ کہ جہاں تک کہ لوگ باہر کے اس میں سفر کرتے تھے وہ پی آئی اے کے اسٹاف کو ملے بغیر نہیں جاتے تھے۔ اگر ہم ان کی ایئر ہوسٹس کی بات کریں تو وہ کسی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ ایکٹریس سے کم نہیں تھی۔ خاص طور پہ مس مومی گل دورانی کے چہرے کو آج بھی ایوییشن کی تاریخ میں ایک موسٹ بیوٹیفل چہرہ مانا جاتا ہے۔ پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس کسی فلم سٹار سے کم نہیں لگتی تھی، جو ہوٹل لوبی میں ایئرپورٹ میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی تھی۔ یہ ویل ایجوکیٹڈ، خوبصورت اور پروفیشنل طریقے سے ٹرینڈ تھے، جو پی آئی اے کا شاندار امیج پیش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ پیرامڈ کے قریب ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ان کے مینیجر نے کہا کہ خاص ریکویسٹ کی کہ پی آئی اے کی کیبن کرو کو ان کے ہوٹل مینا ہاؤس میں شفٹ کیا جائے تاکہ ان کے ہوٹل کی کلائمیٹ چینج ہو سکے۔ اس کے بعد ایئر انڈیا، سنگاپور ایئر لائن، تھائی ایئر لائن اور ملیشیا ایئر لائن نے بھی پی آئی اے کو فالو کیا اور اپنی یونیفارم میں نیشنل ٹچ لے کر آئے۔ اسی طرح پی آئی اے ایشیا کی ایوییشن انڈسٹری میں ٹرینڈ سیٹلر بن گئی تھی، چونکہ ایشیا کی ایئر لائن اب پی آئی اے کو کاپی کرنے لگ گئی تھی۔ پی آئی اے کی اچیومنٹ اتنی زیادہ ہے کہ انہیں انگلیوں پہ گننا مشکل ہے۔ پی آئی اے وہ پہلی ایئر لائن تھی جس نے بوئنگ جیٹس کو ایشیا میں انٹروڈیوس کروایا۔ یہ نان کمیونیکیٹ ایئر لائن ہونے کے باوجود
बावजूद भी इन्होंने चाइना में लैंड करवाया। चाइना में जाने वाले दूसरे रूट पे इस्तेमाल किया और ये रूट कराकोरम रेंज से होकर जाते थे। पहली बार ऑटो टिकट सिस्टम भी PIA ने मुतारिफ करवाया। मॉस्को यहाँ पे पहले सोवियत यूनियन की हुकूमत हुआ करती थी। PIA पहले नॉन यूरोपियन एयरलाइन थी जिसने पहली बार नॉर्वे में लैंड किया। इसके अलावा PIA पहली ऐसी एयरलाइन थी जिसने 1960s में इन फ्लाइट्स में इंटरटेन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ PIA को गोल्डन एरा भी कहा जाता था जब कराची को एविएशन का हब माना जाता था। उस वक्त PIA ने कराची एयरपोर्ट में एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया था जहाँ न सिर्फ PIA की क्रू बल्कि इनके अलावा काफी इंटरनेशनल क्रू प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आते थे। पर PIA के शानो शौकत के दिन अनकरीब ढलने वाले थे। इस वक्त PIA की एविएशन के एक्सपर्ट MD इरफान अहमद थे। इन्होंने अपनी सलाहियत से PIA की तरक्की और इसके नाम को रोशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अभी तक PIA की मैनेजमेंट एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में थी, लेकिन 1971 में PIA की मैनेजमेंट एयर वाइस मार्शल जफर चौधरी के हाथ में सौंप दी गई। उन्हें PIA का MD बना दिया गया। यह फैसला किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन जनरल याहिया खान ने किया था। PIA के MD जफर चौधरी को अभी अपनी पोस्ट संभाले कुछ ही मंथ हुए थे। इन्होंने PIA के आधे से ज्यादा एम्प्लॉय को निकाल दिया और कुछ जहाज सेल कर दिए। हालांकि ये कदम 1971 में इन्होंने वार के बाद मुल्क को गहरे नुकसान से निकालने के लिए उठाया गया था, लेकिन आने वाले वक्त में यह फैसला PIA के लिए एक से बढ़कर एक मुश्किल चैलेंजेस का सिलसिला शुरू कर बैठा। जिन वर्कर को निकाला गया था वो PIA के हार्ड कोर वर्कर थे जिन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से रात दिन एक करके PIA को इस मकाम पे लाकर खड़ा कर दिया था जिसकी बाकी एयरलाइन कॉपी करती थी। और जहाज सेल करने का मतलब था कि अब PIA की फ्लाइट्स जैसे हर 6 मिनट बाद लैंड और टेक ऑफ करती थी वो नहीं कर पाएंगी। ये ऐसे था कि जैसे कोई रेस का घोड़ा हर बार रेस जीतता हो और एक रेस हारने पर उसकी एक टांग काट दी जाए। वो अब जिंदा तो रहेगा लेकिन रेस में दौड़ने के काबिल नहीं रहेगा। इस वाकये के बाद PIA को एक और झटका दिया गया और ये झटका था नेशनलाइजेशन। जी हाँ, 1972 में सिविलियन गवर्नमेंट के आते ही प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरी तरह नेशनलाइज कर दिया था PIA को और इसी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये PIA आ गई थी। इससे पहले जब PIA ने 1955 में कोलकाता से पाकिस्तान शिफ्ट किया था तो इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट के शेयर तो थे लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व थे। नेशनलाइजेशन के बाद इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी होने लगी जिसमें PIA की भर्ती में पसंद की बिना पर जॉब्स मिलने लगी जो कि पहले टैलेंट की बिना पर पसंद किया जाता था, लेकिन वो अब अपनी मर्जी की पसंद से उन्हें रखा गया। मैनेजमेंट में ऐसे लोग आ गए जिन्होंने फैसला लेना शुरू कर दिया जो पॉलिटिकल के लिए तो अच्छे थे लेकिन इनका बिजनेस सेट से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। काम के लिए नहीं बल्कि सियासी फायदों को हासिल करने के लिए न्यू एम्प्लॉयज हायर किए गए जिसकी वजह से PIA की सैलरी देने का बर्डन बढ़ गया। 1980 में एक बार फिर से एयर वाइस मार्शल जफर चौधरी को PIA का MD बना दिया गया। ये वही MD थे जिन्होंने 1971 में MD बनाया गया था। इन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसे ही फैसले किए जिन्हें काफी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया था। इनमें से सबसे बड़ा फैसला ये भी था जो इन्होंने PIA को एमिरेट्स की जहाज लीज पर देने का फैसला किया। PIA का डाउनफॉल वैसे ही चल रहा था, रूट कम हो चुके थे और जहाज पुराने होने की वजह से मेंटेनेंस मांग रहे थे। जफर चौधरी ने PIA के 2 जहाज दुबई के रूलर को लीज पर दे दिए जो इस वक्त एमिरेट्स की शुरुआत कर रहे थे। एक तरह से ये जहाज क्रू समेत रेंट पे दे दिए गए। इस फैसले से PIA को करीब का प्रॉफिट था लेकिन दूर का नुकसान था। शॉर्ट
टर्म में दुबई की तरफ से पैसे तो मिल गए, लेकिन बाद में दुबई ने अपनी एयरलाइंस लॉन्च कर दी। PIA के तमाम रूट्स को ये अपने नाम करता गया, यानी जिन रूट पे PIA कमाती थी अब वो एमिरेट्स कमाने लग गई। जैसे कि पाकिस्तान के अहम सिटीज पर PIA का कंट्रोल था, अब वहाँ पे एमिरेट्स भी सर्विस देने लगी। मिडल ईस्ट के रूट पर भी पाकिस्तान से जद्दा जाने वाले पैसेंजर को भी एमिरेट्स ऐसा ऐसा अपनी तरफ सर्विस देते हुए उनको अपने नाम करती गई। PIA की लंदन की तरफ से भी फ्लाइट थी, लेकिन एमिरेट्स ने अपनी लग्जरी इमेज और बेहतरीन कस्टमर सर्विस की वजह से इस रूट पे अपना कदम जमाना शुरू कर दिया। जैसे एशिया जाने वाली फ्लाइट्स जो पहले कराची में स्टॉप ओवर करती थी और वहाँ पे PIA की फ्लाइट्स चेंज करके पैसेंजर चाइना और जापान और सिंगापुर जैसी कंट्री तक जाते थे। क्योंकि अब इन रूट्स पर एमिरेट्स भी चलने लग गई थी, तो जो पैसेंजर इन रूट्स पर सफर करते थे वो अब कराची में स्टे ओवर करते थे। अब क्योंकि ज्यादा लोग एमिरेट्स को चाहने लगे थे, तो अब वो कराची से ज्यादा दुबई में स्टे ओवर करना पसंद करते थे, जहां से वो एमिरेट्स के जरिए एशिया की कंट्री में जाया करते थे। इसी तरह एमिरेट्स ने दुबई से न्यूयॉर्क, टोरंटो, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में भी फ्लाइट चलाने लग गए। इसी तरह एमिरेट्स ने PIA की मार्केट पे ऑपरेट करने लग गई। इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री में न्यू प्लेन भी आने लग गए थे, जिसमें एक साथ पैसेंजर ट्रेवल कर सकते थे और कम फ्यूल में ज्यादा सफर किया जाता था। जनरल जियाउल हक के दौर में PIA के लिए 4 न्यू बोइंग 747 एयरक्राफ्ट लेने का फैसला किया गया। उस वक्त PIA की मैनेजमेंट इनको संभालने के काबिल नहीं थी। फैसले से कई लोगों ने तनकीद की और कई लोगों का कहना था कि अगर चेंजिंग लानी है तो सिस्टम में लाई जाए। हालांकि ये एयरक्राफ्ट काफी एडवांस थे, लेकिन पाकिस्तानी पैसेंजर की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी कि वो एमिरेट्स जैसे जहाज के होते हुए भी इसको इस्तेमाल करे। ऐसे PIA की ज्यादातर फ्लाइट्स खाली जाने लगी। प्रॉफिट की जगह उल्टा PIA को लॉस होता गया और पैसे कमाने की जगह उल्टा जेब से लगाने पड़े और ऊपर से कर्जा लेकर ये जहाज लिए गए थे, जो कि आखिर में पूरा बर्डन एयरलाइन पे ही पड़ना था। PIA में मौजूद नाअहल लोगों की वजह से करप्शन और मिसमैनेजमेंट की काफी ज्यादा केसेस सामने आए। 2017 में यूरोपियन यूनियन ने सेफ्टी स्टैंडर्ड की वजह से पाकिस्तान के कई एयरक्राफ्ट को यूरोप में एंट्री करने से बैन कर दिया। ये एक बहुत सीरियस इशू था जो PIA की रेपुटेशन को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा रहा था। इन मसलों के चलते हुए जो एयरलाइन इंटरनेशनल रूट्स पे जाया करती थी उन पर से लोगों का एतमाद खत्म होता गया। अल्टीमेटली इनको कई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन खत्म करनी पड़ गई। वाशिंगटन तो 1990s में ही PIA की लिस्ट से निकल चुका था। 2006 में हॉस्टन, 2012 में शिकागो और 2017 में न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट भी बैन कर दी गई। ये वो रूट से जिन पे PIA खूब कमाया करती थी। जो लोग PIA को 1980 से चलाते गए हैं उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। और फिर जाहिर सी बात है, जो बीज बोया जाएगा फसल भी वैसी ही होगी। आने वाले हर नए साल में PIA की दास्तान में नुकसान ही नुकसान करती गई। 2001 से 2023 तक बात की जाए तो इसमें सिर्फ 3 साल ही ऐसे हैं जब PIA ने कुछ प्रॉफिट किया। 2002 to 2003, 2004 इन्हीं सालों में कुछ प्रॉफिट किया। इसके बाद नुकसान का वो सिलसिला शुरू हुआ जो किसी के काबू में ना आ सका। 2005 में PIA को 8,394 PKR का पर मिनट लॉस होता गया। 2013 में ये नुकसान 18,000 PKR चलता गया। 2023 में ये नुकसान 23,44,000 पर मिनट होता गया। अगर ये मिनट नहीं तो अगर सालों पे इसको कैरी किया जाए तो ये काउंटिंग इतनी ज्यादा अमाउंट बन जाएगी कि इनके फिगर को पढ़ना मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान का नेशनल कैरियर जिसको अवाम का सुकून बनना चाहिए था, गलत फैसलों और चंद लोगों के अपने फायदे की वजह से अवाम पर बोझ बन गया और हुकूमत पाकिस्तान के गले की घंटी बन गया। 2018 में नौबत यहाँ तक आ गई थी कि PIA को सेल करने का फैसला किया गया, लेकिन कौन ही पागल था जो बीमार भैंस को खरीदेगा। लिहाजा उस वक्त ये फाइनेंशियल एडवाइजर मिफ्ता इस्माइल ने एक डील इंट्रोड्यूस करवाई, बाय वन गेट वन फ्री। उन्होंने अनाउंस किया कि जो PIA परचेज करेगा उसको पाकिस्तान की स्टील मिल फ्री दी जाएगी, लेकिन ये डील भी काम नहीं आई। PIA के ताबूत पर आखिरी कील डालने का
का मौका कोविड-19 को मिला, जब पूरी दुनिया एयर ट्रैवल ना होने के करीब करती थी। लेकिन इसके बाद PIA को एक और झटका मिलना बाकी था। मई 2020 में PIA की एक फ्लाइट 8303 कराची के एयरपोर्ट लैंड होने से पहले ही थोड़ी देर पहले आबादी वाली जगह पर इस हादसे में 97 पैसेंजर की जान चली गई और इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पायलट की गलती सामने आई। यह मसला चल ही रहा था कि पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर ने एक पोल खोल दी कि पाकिस्तान के एयरलाइन के पायलट के लाइसेंस फेक हैं और चीटिंग करके ये पोस्ट पर पहुंचे हैं। ये बात तो पार्लियामेंट में हुई थी, लेकिन इसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी गई और ये बात वायरल हो गई, जिससे PIA की रेपुटेशन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। इस स्कैंडल की वजह से इंटरनेशनल अथॉरिटीज ने PIA के मुख्तलिफ रूट्स पर बैन लगा दिया। अब कंडीशन ये है कि PIA ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान कर्जों तले दबा हुआ है। IMF जो पाकिस्तान को इमदादी कर्जे देता है, उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान की कंपनी जो कि पाकिस्तान नहीं संभाल सकता उनको प्राइवेट किया जाए और या फिर उनको सेल कर दिया जाए। गवर्नमेंट ने PIA को प्राइवेट करने के लिए 6 कंपनियों को क्वालिफाइड किया था। इस पॉलिसी की शुरुआत 85,000 करोड़ से शुरू की गई थी। बदकिस्मती से 6 में से सिर्फ एक ग्रुप ब्लू वर्ल्ड सिटी ने PIA के 60% शेयर खरीदने की मांग की और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ में, जो कि 350 करोड़ डॉलर बनती थी। ये पैसा इतना है कि जो एमिरेट्स एक साल नहीं, एक मंथ नहीं, एक वीक नहीं, बल्कि महज सिर्फ 2 दिन 13 घंटों में कमाती है। 2024 में एमिरेट्स ने अपने एक साल का प्रॉफिट 500 करोड़ डॉलर डिक्लेयर किया था। जी हाँ, ये एमिरेट्स वो है जिसको लॉन्च करने में PIA की बहुत बड़ी मेहनत थी। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर कोई इसको फ्री में खरीदता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी।